So sometimes, if this upbringing is proper and the parents are mindful of these things, mindful of or aware of the mental health, then they can help their children to deal with the problems better. कभी कभी क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जिसको हम डिसमिसिव पॉजिटिविटी बोलते हैं, कि प्रॉब्लम्स को डिसमिस ही कर दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है, इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इतना कमा के दे रहे हैं, देखो रास्ते पे बच्चों को दो टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, तुम कैसे डिप्रेशन में जा सकते हो, तुम्हें तो इतना कुछ है। सो दे आर डिसमिसिंग देयर प्रॉब्लम्स, देयर चाइल्ड्स प्रॉब्लम। ओके, तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा वो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं डॉक्टर चिन्मय कुलकर्णी, आई एम साइकियाट्रिस्ट। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ एंड मेरा मेनली इंटरेस्ट है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन एंड अदर एडीएचडी, एडल्ट एडीएचडी। ये मेरी मेन इंटरेस्ट टॉपिक्स है। मैं मेडिसिन एज वेल एज बिहेवियर थेरेपीज दोनों का मिक्सचर करता हूँ और उससे ट्रीटमेंट है। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग और profound insight you have gained about human behavior and the mind through years of practice psychiatry? Correct. So there are many such insights, but one of the main insights I have gained is that the problems or the symptoms related to mental health or mental disorders are often continuation of our normals. Means अगर कोई आदमी हाथ धोता है, हाथ धोना तो अच्छी बात है, अगर वो 10-50 बार धोने लगता है, देन दैट इज लिटिल बिट प्रॉब्लम है। उसको उस सीढ़ी में काफी बार भी लगता है, तो थोड़ा सा डर लगना इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट नेचुरल, क्वाइट नेसेसरी ऑल्सो। बट इफ यू स्टार्ट गेटिंग टू स्केयर्ड, टू फियरफुल, एंड देन दैट इज लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो अक्सर जो है कि कहाँ कहाँ तक ये नॉर्मल था और कहाँ पे ये एबनॉर्मल होगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि ये गलत है, ये बुरा सही। सो अक्सर ये है। नाउ देर आर सम सिम्टम्स विच आर क्वाइट एबनॉर्मल, लाइक some people start hearing some voices which are not there. But ज्यादातर symptoms ऐसे है कि they are continuation of the normal life itself. But the extent to which they continue or the intensity with which they continue, that is problem. So this is, I think, one of the important things. And it is very important for us to, second important insight is that very often these symptoms develop very, very gradually. So it is not that one day, usually it won't happen that yesterday everything was fine and today everything has gone wrong. Usually that doesn't happen. It can happen sometimes. But usually the process of development of these disorders is quite slow. तो वो एकदम से समझ में भी नहीं आता है बहुत सारे लोग। So it is very important to be mindful, understanding, aware of the way in which your mind is functioning, how you are feeling, what are the thoughts. That is, I think, very important. Those people who have better understanding of their own psyche, their own mind, their own feelings, their own emotion, they often are at a better place to uh, get themselves out of these issues. Okay, can you explain, according to your perspective, what is neuroscience? So neuroscience is basically our brain and how it functions and how it affects different aspects of our body as well as our mind.
So neuroscience is basically understanding the functioning of brain because it is one of the most complex things in this world. Human brain is so complicated, so complex और बहुत ही छोटा दिखता तो है बट उसमें इतने सारे न्यूरल कनेक्शंस है एक जगह से दूसरी जगह पे जुड़ा हुआ है एंड इट इज स्टिल इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर साइंस टू काइंड ऑफ नो कंप्लीटली कि ब्रेन कैसे फंक्शन होता है एंड एवरी डे देर आर so many studies are going on, so much of research is going on. So we are finding out more and more about our brain. So that finding of how the brain functions, that is basically neuroscience. How the brain functions, how it affects our different body parts, how it affects our mind also, how it affects our thinking, how it affects our actions, the way we deal with our emotions. All of these things are related to our brain. And the study of this thing is called a neuroscience. Okay, starting से करते हैं. Okay, so how do you see the intersection of neuroscience and psychiatry shaping the future of mental health treatment? Right. So it is the neuroscience is at the core of the mental health treatment because the thing is that earlier, means 70 years, 80 years back, the basic concept was that mind and body are kind of different and we have to focus on our mind. We have to focus on how we get some thoughts. Why are these thoughts there? What are the drives? What were the previous experiences? बचपन में क्या हुआ था उस टाइम पे ये हुआ था इसकी वजह से ये so a lot of emphasis was given on your mind and because that was what was believed and that is also quite natural also क्योंकि हमको लगता है कि हमारे जो विचार है they are our thoughts. People are ready to die for those thoughts and they feel that that is uh, their own thinking and on. But basically, technically speaking, uh, since in the past 20, 30 years, a lot of research has happened on this. And now it is quite clear that our brain chemistry, our brain biology, the neural circuits inside our brain, the neurons which are connected to different parts, they also determine a lot of how we feel, how we think, what actions we take, how will we behave. All these things are somewhere connected to our brain biology. तो पहले जैसे लगता था पहले के लोगों को कि नहीं ये ब्रेन इज मेनली रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज लिटिल बिट डिफरेंट तो वो अभी रहा नहीं है अभी बॉडी एंड माइंड आर सेम इट इज लाइक बॉडी माइंड इज अ सिंगल एंटिटी and also it is necessary to understand that in the newer technologies in the neuroscience they have given us a very good they are giving us very good insights about how the psychiatric disorders develop, how the mental disorders develop, how they persist. There are sometimes some parts of the brain, for example, there is a part of the brain called as amygdala which is often hyperactive, overactive, and people who have that overactive kind of amygdala, then they start getting disorders like anxiety. Okay, डर लगता है. Amygdala is related to our emotions and the memory of those. So these types of neuroscience related research is showing us कि एक पर्टिकुलर विचार जब आता है एक पर्टिकुलर इमोशन जब हमारे मन में आता है तो हमारे कौन से ब्रेन के पार्ट में ज्यादा वो फंक्शनिंग है उस समय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर एक्टिव और लेस एक्टिव और इनएक्टिव एंड इज दिस पैथोलॉजिकल thought or symptom, is it because a particular
part is not functioning adequately or not. तो ये आजकल जो फंक्शनल एमआरआईज या इस टाइप की जो स्कैन्स वगैरह है, वो ये चीजें काफी देख उस पे ऊपर a lot of research is happening, and that is giving us many new kind of understanding of why a person behaves in this way, why a person does these things, what are the thoughts, what are the parts of the brain, और फिर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स, कौन से न्यूरोकेमिकल्स ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से आदमी इस तरीके से फील करता है या इस तरीके से बिहेव करता है. And so all these things are very fascinating, and the neuroscience or the newer technologies जो आ रही है इसमें, वो इसमें हमको बहुत बड़ी इंसाइट्स दे रहे. इट इज स्टिल एन इमर्जिंग साइंस, but it is a very promising science. डू यू थिंक कि जेनेटिक्स का भी एक रोल होता है मेंटल हेल्थ पे? Yes, so obviously genetics का बहुत बड़ा रोल होता है mental health पे. The issue is कि it is not a reductionist thing. मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, इसके फादर को, ये पर्सन को अगर स्किजोफ्रेनिया है तो उसके बच्चे को स्किजोफ्रेनिया होगा. तो ऐसा नहीं होता है. However, suppose someone's father has schizophrenia, then that person has higher chances of getting schizophrenia as compared to those children whose parents don't have. But इसका मतलब ये नहीं कि उनको है तो इनको भी होगा, क्योंकि कैसा होता है कि जेनेटिक्स में भी एपिजेनेटिक्स की चीज होती है, करके कंसेप्ट होती है कि some parts of genes express themselves, some genes don't express. तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है, एंड दोज फैक्टर्स विच आर प्रोटेक्टिव, अगर वो उनके ऊपर भी डिपेंड होता है. तो जेनेटिक्स हैज सम रोल टू प्ले इन इट, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, like as we say that many of the mental health disorders, they are multifactorially. मतलब एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है. जिसको डिप्रेशन होता है तो थोड़ा सा न्यूरोबायोलॉजिकल है, थोड़ा रियल लाइफ सर्कमस्टेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, थोड़ा रिलेशनशिप रिलेटेड है, थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, थोड़ा जेनेटिक रिलेटेड है, और ये सब चीजें मिलके ऑफन अ पर्सन starts or gets some type of mental disorder. So genetics plays a vital role, but it is not the only factor which determines. Okay. What are the some common misconception about the mental illness that you encounter, and how can we as a society work to debunk them? So this is especially in India, there are so many misconceptions people have about mental health. पहली चीज है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मानसिक प्रॉब्लम हो गया है, तो इसका मतलब है कि मैं पागल हूं. सो दैट इज द कोर बेसिक थिंग, जो कि एवरी सेकेंड और एवरी, मतलब मोर देन दैट ऑल्सो यू गेट, कि 4 में से 3 लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि दे आर डिफेंसिव बेस्ड ऑन दिस ओनली, कि मैं कोई पागल थोड़ी हूं, मैं, मुझे साइकेट्रिक प्रॉब्लम कैसे हो सकता है. तो बेसिक मिसकंसेप्शन इंडिया में ये है कि ऑल द साइकेट्रिक इलनेसेस, ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द साउंडनेस ऑफ माइंड, या फिर हम बोलते हैं रियलिटी से उसका टच छूट गया है. तो प्रॉब्लम यहां पे आ रहा है कि आप, कुछ कुछ लोगों को रियलिटी से टच छूट जाता है, या सम पीपल दे डोंट हैव साउंडनेस ऑफ माइंड, बट दैट इज अ माइनॉरिटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. मेजॉरिटी ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उसमें आपका रियलिटी से टच छूटता नहीं है. यू आर साउंड बाय योर माइंड, बट योर माइंड इज नॉट फंक्शनिंग as good as it used to function earlier. तो
ये हमेशा मेनली इंडिया में ये कंसेप्ट जो है कि मैं नहीं जाऊंगा साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, मैं पागल थोड़ी हूं। तो ये एक बेसिक मिसकंसेप्शन है जो वेरी वाइडली है, एंड वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन दिस थिंग कि ये नहीं है। एंड आई थिंक सम ऑफ द गुड थिंग्स लाइक इन इन सच पॉडकास्ट या फिर कुछ कुछ इसमें हम अगर इसके बारे में बात करें कि नहीं, आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, इवन दो यू आर क्वाइट साउंड बाई योर माइंड, मतलब आप पागल नहीं हो फिर भी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है। इट्स ओके, it's okay to go to a psychiatrist and get yourself assessed, to get yourself treated, than to kind of suffer in silence just because of the stigma कि मैं कैसे जाऊं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड मिसकंसेप्शन, कॉमन मिसकंसेप्शन ऐसे होता है कि साइकेट्रिस्ट लोग जो है वो सिर्फ नींद की दवाई देते हैं। दैट्स ऑल्सो वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। तो इसका भी एक ये है कि ऐसा नहीं है, ये साइकेट्रिस्ट डोंट गिव, यूजुअली वी डोंट गिव स्लीपिंग पिल्स एज सच, वी गिव मेडिसिन। अब वो मेडिसिन के बहुत सारे मेडिसिन के कुछ ना कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, और हमारी मेडिसिन का कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि थोड़ा नींद ज्यादा। सो समटाइम्स व्हेन वी गिव मेडिसिन, सम पीपल समटाइम्स कैन स्लीप मोर। उनको लगता है कि नींद ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये नींद की गोली, बट ऐसे नहीं होता है। जो जैसे मैंने बोला कि समटाइम्स यू नो आवर ब्रेन, सम पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, या फिर वेरी कॉमनली जो है हमारे ब्रेन के कुछ कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, दे आर नॉट एडिक्वेट, देयर इज सम न्यूरो बायोलॉजिकल इम्बैलेंस। सो सपोज सेरोटोनिन लेवल्स कम हो गए, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स का इम्बैलेंस हो गया, डोपामिन का कम हो गया। So because of these changes in this neurobiology, neurotransmitters, आदमी को डिप्रेशन जैसे लगने लगता है, एंजाइटी लगने लगता है, घबराहट होने लगती है। So when we give some medicines, they are kind of working on these systems कि ये सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाएंगे, ये नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल्स को नॉर्मलाइज करेंगे, डोपामिन को बढ़ाएंगे सो दैट यू फील बेटर। या फिर उल्टा भी होता है, कभी कभी डोपामिन का लेवल्स बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर सर्किट में ब्रेन, तो उसकी वजह से आदमी को शक होने लगता है या फिर हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जो आवाजें नहीं है वो आने लगती है। तो हम कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं जिससे उसका लेवल नॉर्मल पे आए। सो इट इज ऑफन पीपल थिंक के साइकेट्रिस्ट गिव ओनली स्लीपिंग पिल्स, तो ये अनदर मिसकंसेप्ट। थर्ड मिसकंसेप्शन ये है कि गोली शुरू कर दी तो अब ये लाइफ टाइम चलेगी, तो इसलिए गोली शुरू ही मत। ये भी एक थर्ड मिसकंसेप्ट है। सो उसके लिए भी वी वांट टू टेल के मेजॉरिटी, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हु गो थ्रू सम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, उनमें ये ट्रीटमेंट कुछ महीने वगैरह चलती है, एंड उसके बाद में गोली सिस्टमैटिकली, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली बंद भी की जाए, बिकॉज इट इज नॉट दैट everybody who starts taking medicines they will have to take it lightly, बट कुछ कुछ इलनेसेस ऐसे होते हैं कि जो लाइफ टाइम रहते, इसके डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे इलनेसेस है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो कि लाइफ टाइम रहता है। तो बिकॉज द इलनेस इज लाइफ टाइम, द ट्रीटमेंट समटाइम्स गोज ऑन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बट इट इज नॉट कि वो गोली नहीं लेते तो वो इलनेस ठीक नहीं होने वाला। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। Fourth thing which people, another fourth misconception, commonest misconception is कि कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, तो फिर इसको कैसे डिप्रेशन, यू नो देर इज नो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ही इज वर्किंग वेल, ही हैज गुड जॉब, ही हैज गुड वाइफ, ही हैज गुड फैमिली, सब कुछ ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ तो इसको कैसे डिप्रेशन। सो दैट ऑल्सो इज वेरी कॉमन। या फिर लोग खुद भी बोलते हैं कि मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो उसका भी एक ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होना ही चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं. समटाइम्स और मेनी टाइम्स देर इज सम ट्रिगरिंग फैक्टर. समबडी हैज लॉस्ट अ जॉब, कोई डिवोर्स मैसेज आ रहा है, किसी के नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है, तो वो ट्रिगर करता है आपके डिप्रेशन को. बट ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो अनदर कॉमन मिसकंसेप्शन. एंड हाउ डू वी डील विथ दीज मिसकंसेप्शन? तो सोसाइटी में क्या कर सकते हैं? एक है कि वी हैव टू हैव मोर कम्युनिकेशन. इन चीजों के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए. एंड गुड थिंग नाउ डेज विच वी आर सीइंग इज दैट मेनी ऑफ दीज सेलिब्रिटीज आर कमिंग आउट एंड टेलिंग कि हमें ये प्रॉब्लम हुआ था. जैसे दीपिका पादुकोण ने बताया, अनुपम खेर ने बताया, विराट कोहली ने बताया. सो समटाइम्स दीज थिंग्स डू हेल्प के लोगों में इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हाँ, ऐसा इन लोगों के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है. सो वी शुड नॉट फील के कुछ तो बहुत ही भयंकर चीज हमारे साथ हो गई है. दीज आर थिंग्स विच डू हैपन. जैसे दूसरे इलनेसेस होते हैं, मलेरिया होता है, टाइफॉइड होता है, डायबिटीज होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वैसे ये भी साइकेट्रिक इलनेसेस भी हो सकते हैं किसी को. जैसे किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे ये भी किसी को भी हो सकता है. तो दिस अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू ब्रिंग इन द पीपल. और नेक्स्ट उसकी ये है कि इसकी लिए आपको जो हेल्प लेनी जरूरी है, वो अगर आप लेते हो तो यू कैन अवॉइड मेनी years or months का सफरिंग. तो मेनी टाइम्स पीपल सफर सो मच. अभी मेरे पास जस्ट लास्ट मंथ, लास्ट 2 हफ्ते पहले एक पेशेंट आई थी एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पास्ट 7-8 years. बट शी वॉज डिनाइंग, क्योंकि जो स्टिग्मा जैसे हमने बात की, तो वो स्टिग्मा की वजह से वो आ नहीं रही. somehow her friend, one of her friend convinced के नहीं, आप एक बार जाके आओ. So she came and just in 2 weeks she is feeling so better. तो अभी शी इज फीलिंग बैड कि अरे मैं क्यों 8 साल तक इतना क्यों सफर कर रही थी, मैं 8 साल से डिप्रेशन में चल रही हूँ और मैंने अभी तक क्यों नहीं है. सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर कि आपको ये समझना है कि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है. आप जो प्रॉब्लम में से जा रहे हो इसके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं. So once you understand that thing, then you will be positive towards it. कि अगर मुझे कुछ थेरेपी लेके, कुछ मेडिसिन लेके अगर मैं इसमें से कंप्लीटली बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, तो व्हाई शुड आई नॉट डू दैट. ओके. अपब्रिंगिंग का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में. तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जैसे इफ दे आर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं अपने जो उनके बेटा या बेटी जो भी होते हैं, तो उन पे वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंग्जाइटी. तो आपको लगता है कि अपब्रिंगिंग जो होती है वो भी बहुत मायने रखती है इस चीज में? अपब्रिंगिंग मायने काफी रखती है. उसका कारण ये है कि इफ द पेरेंट्स आर ओपन टू दीज डिस्कशन एंड दे आर माइंडफुल, मतलब हम जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकली माइंड. इसका मतलब है कि साइकोलॉजी कैसे फंक्शन होती है, माइंड कैसे फंक्शन होता है, कब वो गड़बड़ कर रहा है, ये अगर पेरेंट्स को समझ में आ रहा है, then that helps the child. Because see, nowadays in children, there are uh, many children have these disorders like attention deficit hyperactivity. इसमें क्या है कि बच्चा बहुत ज्यादा चंचल होता है, एक जगह पे बैठता नहीं है. या फिर जब स्कूल में पढ़ा रहे तब वो फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाता है. आ, तो फिर बहुत बार क्या होता है कि स्कूल में या इसमें ये बच्चे को ही बेचारे को मारते रहते हैं कि भाई ये बहुत शरारती बच्चा है, बहुत परेशान करके रखता है, ध्यान देता नहीं है. इनको ये समझ में नहीं आता है कि बेटे को ये एडीएचडी होने की वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा. ऐसा नहीं कि वो बुरा लड़का है, बट ही इज नॉट एबल टू डू, ही इज नॉट एबल टू सिट एट वन. तो उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए. अब जो पेरेंट्स को ये चीज पता होती है, दे हेल्प देयर चिल्ड्रन एंड देन फिर चिल्ड्रन नॉर्मल बच्चों जैसे पढ़ते हैं, सीखते हैं. नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चा
सीखता नहीं है उस टाइम पे, समझ लो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में एकदम बेसिक चीजें सिखाई जाती। अब कोई बच्चे को अगर एडीएचडी है और पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस और दे आर डिफेंसिव अबाउट, ये बोलते हैं ऐसे कुछ होता ही नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे बच्चे को ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर बच्चा वो चीजें सीख नहीं पाता है। अब आजकल क्या है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिटरेसी, फेल आप नहीं कर सकते, तो बच्चा आगे चला जाता है। बट अब वो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आ गया और उसका बेसिक सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में ही वो सीखा नहीं, देन ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट इन द 8th स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका बेसिक सीख कच्चा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस। या फिर दूसरी भी ऐसी डिसऑर्डर्स होती है जैसे कि लर्निंग डिसएबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटी, जिसमें बच्चे को अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। तो बच्चे का इंटेलिजेंस नॉर्मल है, बट जैसे नॉर्मल बच्चों को सिखाया जाता है वैसे तरीके से अगर उसको सिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इफ द पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ दीज थिंग, देन पेरेंट्स कैन, उसके लिए सर्टिफिकेशन भी होता है। तो अगर एनडी का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड जो है वो उनको कुछ ये देते हैं, मतलब सहूलियत देते हैं कि आप, हाँ ठीक है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है ना, तो आप बताओ कोई और राइटर आपका लिखे, इस टाइप से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स सो दैट दे कैन अंडर लर्न दीज थिंग्स एंड हेल्प देयर चिल्ड्रन। मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो हर ओन मदर डाइड, ठीक है, और फादर वाज, जो कि खुद बोलते थे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। एंड इतना कि वो फादर ने जब ये बेटी की माँ गई, मतलब हिज वाइफ डाइड, तो ही डिडंट डू एनी ऑफ द लास्ट राइट्स वगैरह जो है, या फिर जो जनरली डेथ होने के बाद जो भी चीजें करते हैं, रिलेटिव आएंगे आपके घर पे, आपसे बात करेंगे, तो इन लोगों ने बोला नहीं नहीं, ये सब नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब नहीं है, अब वो गई, अभी उसका क्या है, ये करना है, छोड़ो ये सब। एंड ही डिडंट इवन अलाउ द डॉटर टू गो थ्रू ऑल दिस। एंड when the daughter came to me for 5 6 years, she was suffering because of this, कि हर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीफ को, रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं, the grief was not resolved and this became a protracted grief, कि जो चीज एक 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने में ठीक हो जानी चाहिए, वो 7 8 साल तक वो चलती है। सो sometimes if this upbringing is proper and the parents are mindful of these things, mindful of or aware of the mental health, then they can help their children to deal with the problems better. कभी कभी क्या है कि पेरेंट्स को लगता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जिसको हम डिसमिसिव पॉजिटिविटी बोलते हैं, कि प्रॉब्लम्स को डिसमिस ही कर दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो इतना अच्छा सब कुछ मिला हुआ है, इतना बड़ा घर है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इतना कमा के दे रहे हैं, देखो रास्ते पे बच्चों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, तुम कैसे डिप्रेशन में जा सकते हो, तुम्हें तो इतना कुछ है। सो दे आर डिसमिसिंग देयर प्रॉब्लम्स, देयर चाइल्ड्स प्रॉब्लम। तो डिसमिस करता है तो बच्चा और उनसे कम्युनिकेट करना कम कर देता है, देन ही फर्दर सफर्स मोर, क्योंकि वो अगर कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा, तो कुछ तो समझ में आएगा। आपने उसके प्रॉब्लम्स को ही डिसमिस कर दिया तो वो फिर से बात भी नहीं करेगा, एंड देन वो बिना बात करे उसके अंदर तो प्रॉब्लम बढ़ता जाए, एंड समटाइम्स यू एंड अप इन मेजर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि if something is there then we have to do something about it, just by कभी कभी सिर्फ पॉजिटिव बात करना इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं। सो या दैट इज व्हाट आई वुड। ओके, हाउ डू यू डिफाइन डिप्रेशन? क्योंकि डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, पीपल दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। वो आज भी इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज है। राइट, कंफ्यूज भी है और बहुत लूजली भी ये टर्म को वो यूज कर रहे हैं।
छोटा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा उदासी लगने लगा तो बोलते हैं आई एम डिप्रेस्ड। सो हम क्या बोलते हैं कि डिप्रेस्ड मूड एंड डिप्रेशन एज अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये बहुत अलग अलग चीज। ओकेजनली सैड लगना, ओकेजनली डिप्रेस्ड लगना, ओकेजनली स्ट्रेस्ड लगना, ये नॉर्मल, एंड दैट इज नॉट अ डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होती है, इट मीन्स कि आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2 हफ्ते से ज्यादा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, उससे भी ज्यादा कंटिन्यूअसली अगर आप अपने आप को उदासी महसूस कर रहे हो, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, आप काम पे जा रहे हो पर लग नहीं रहा है काम पे जाने जैसा, किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही, या फिर पास्ट में जो चीजें हो गई है वो दिमाग में चल रही है, ये मैंने क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसे क्यों किया, फ्यूचर के बारे में होपलेस लग रहा है, निराश लग रहा है कि मेरा कुछ ठीक होगा ही नहीं, कुछ मेरे से कुछ होने वाला नहीं, फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस है, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस है, या आई एम अ फेलियर, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया लाइफ, या फिर नींद ठीक से नहीं आ रही। वेरी कॉमनली डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर जब शुरू हो जाता है तो नींद बहुत बार प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि बिकॉज ऑफ दीज निगेटिव थॉट्स पीपल दे गो टू बेड बट दे कीप ऑन थिंकिंग कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये वो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, उसकी वजह से उनको नींद नहीं लगती। कुछ लोगों को नींद लग जाती है बट 1-2 घंटे बाद उठ जाते हैं, फिर नींद नहीं। कुछ कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब 11 बजे सो गए बट 3 बजे उठ गए, और 3 बजे के बाद फिर नींद नहीं, फिर दिन भर फ्रेश नहीं लगता। उसमें और एक ये है कि नेक्स्ट स्टेप इज के यू फील सुसाइडल, सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं जान दे देता हूँ, जान दे देती हूँ, या लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ऐसे जीने का क्या फायदा, इससे तो मर जाना, एक्सेट्रा। तो दीज आर सम ऑफ दी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है पीपल, बिकॉज समटाइम्स सम पीपल दे कम टू अस एंड से के मुझे नहीं लग रहा कि मैं पहले जैसा काम कर पा रहा हूँ, but मैं इतना एफिशिएंट नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। अब ये जो सबके सब मैंने बताया है, ये सब सिम्टम्स एक बंदे में होते नहीं है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, कभी कभी होते भी है, बट यूजुअली 5-6 जो है, कि 5-6 जो सिम्टम्स भी आते हैं एंड दे आर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मोर देन 2 मिनट्स का ड्यूरेशन, देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और नॉर्मल जो अपना उदास लगना, नॉर्मल समझ लो कि इंडिया मैच हार गई पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उदास लगना, उसको डिप्रेशन नहीं बोलते। ओके, तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस? अगर खुशी की अगर बात करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को? सी, खुशी ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक। व्हाट वी से इज के हैप्पीनेस का हमारे हिसाब से ऐसा है कि यू शुड बी एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपकी डे टू डे लाइफ में आप एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर, एंजॉयमेंट होनी चाहिए, बट टू मच ऑफ इट वी डोंट से के इज जरूरी भी, ठीक है, बट उल्टा उससे नहीं होना। मेंटल डिसऑर्डर में इसमें क्या है कि हम आप कितना हैप्पी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, आपने ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए इस पे फोकस करते। सो बहुत ज्यादा अगर दुखी होने लगे तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक, दैट्स व्हाट। हैप्पीनेस के बारे में आई वुड से कि लॉन्ग टर्म थिंग अबाउट हैप्पीनेस इज टू फोकस कि आपने ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, तो इट्स निगेटिव इन अ सेंस। एंड सेकेंड इज के देयर शुड बी रीजनेबल प्लेजर इन योर लाइफ। टू मच ऑफ सीकिंग हैप्पीनेस कैन टेक यू टू प्लेजर हंटिंग, मतलब आप सिर्फ वही चीजें करो कि जिसमें आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिले। People who get too obsessed with being feeling good all the time, then oftentimes they get in addictions, क्योंकि उनको लगता है कि ये नशा कर लेंगे तो नशे जैसा प्लेजर बाकी की चीजों में ज्यादा आता नहीं है, तो नशा करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे हो गया। बट व्हाट वी से इज के
हैप्पीनेस और प्लेजर में बहुत बार कंफ्यूजन लोग, हैप्पीनेस के लिए आपको सेंस ऑफ मीनिंग की वो भी बहुत जरूरत है कि व्हाट यू आर डूइंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. So for example, a housewife, if she is taking care of the children properly, she is able to uh, you know अपने बच्चों की वो अच्छे से देखभाल कर रही है, उनको पढ़ा लिखा रही है, ये कर रही है, टीचिंग कर रही है, तो दैट सेंस ऑफ मीनिंग जो है उसकी लाइफ का, वो अगर फुलफिल हो रहा है, तो शी माइट नॉट बी गेटिंग सम अवार्ड्स विच द नेबरिंग वुमन इज गेटिंग, बट शी माइट बी मोर हैप्पी ऑल्सो. तो हैप्पीनेस की एक जो व्याख्या है वो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है. And one has to understand to not get too much occupied or too much confused with pleasure seeking. One has to seek meaning in life, do things which are meaningful for you. उससे आपका एक लाइफ टाइम ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल बनता है. Okay. How do you approach the delicate balance between medication and therapy when treating the patients with mental health disorders? So for us, ये इसके लिए बैलेंस का बहुत सारा काम जो होता है वो ऑलरेडी करा हुआ है रिसर्चर्स ने. वी नो जेन्युइन रीजनेबल, हमको एक अंडरस्टैंडिंग है आज की तारीख में कि कौन सी जगह पे हमको सिर्फ थेरेपी काम करेगी, कौन सी जगह पे मेडिकेशन, सिर्फ मेडिकेशन काम करेगा, कौन सी जगह पे मेडिकेशन जरूरी है और थेरेपी का उतना रोल नहीं है, और कौन सी जगह पे थेरेपी और मेडिकेशन दोनों की जरूरत है. So there are good guidelines about these, and we have to. मेरे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं, एंड ऑब्वियसली जो हमने पहले स्टिग्मा की वगैरह बात की एंड मिसकंसेप्शंस की बात की, तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, इतना सीवियर है क्या डिप्रेशन के दवाई लेनी चाहिए. तो मैं उनको बोलता हूँ कि हम ऐसे नहीं बोलते कि मेडिसिन इज द लास्ट रेसोर्ट. वी थिंक कि मेडिसिन इज द मेडिसिन बेस्ट रेसोर्ट फॉर यू, इज द मेडिसिन बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तो हम देते हैं. हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं सब कुछ, अगर बाकी कुछ काम कर ही नहीं रहा है तभी दो दवाई, बिकॉज दैट इज नॉट फेयर. क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, कि न्यूरोबायोलॉजी है, आपके ब्रेन की बायोलॉजी ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है. तो कुछ कुछ चीजों के लिए दवाई से जो इफेक्ट आएगा वो बाकी की चीजों से नहीं आएगा. एंड अपोजिट इज ऑल्सो देयर. देयर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स वेयर ओनली थेरेपी विल वर्क. सपोज लोग, किसी की पर्सनैलिटी एक पर्टिकुलर टाइप की है और वो पर्सनैलिटी की वजह से वो बंदा, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू distress, trouble, or he's causing distress and trouble to others, then that working on that personality is mainly the work of therapy. Because सिर्फ मेडिसिन के किसी की पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, बट टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पर्सन्स एक्शन, उसको वो समझाना एंड उसमें से वो चेंज लाना. दिस वर्क इज डन ओनली विथ थेरेपी. सम थिंग्स आर देयर, लाइक माइल्ड डिप्रेशन है तो सिर्फ थेरेपी से भी काम चल सकता है, बट मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन है तो मेडिकेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड. एंड देर आर सम वेज, सम और अ लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस वेयर वी बोथ ऑफ देम गिव्स बेस्ट रिजल्ट. मतलब मेडिकेशंस भी करना है, सो सीवियर एंजाइटी, तो मेडिकेशन से उसकी एंजाइटी को कम करो तो बेसल एंजाइटी इटसेल्फ कम्स डाउन, एंड देन उसको थेरेपी के थ्रू ये अंडरस्टैंडिंग उसमें लाओ कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ, जो एक डूम्सडे सिनेरियो मेरे दिमाग में बना रहा हूँ, वो रियलिस्टिक नहीं है. ऐसा हो सकता है, मतलब समझ लो, बहुत कॉमनली देखा जाने वाला फोबिया होता है कि फ्लाइट में गया और फ्लाइट अगर गई तो मैं गया, बट तो अब rationally, logically speaking, most of these people who are
हैविंग दिस फोबिया नो कि ये बहुत सेफ है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। बट फिर भी वो जब फ्लाइट में चढ़ने को जाते हैं तो उनको ऐसे लगना है कि डर लगने लगता है कि उनको they start palpitating, they start tremors, they can't breathe, they start feeling कि अभी गया खत्म, they start trembling, sweating। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें मेडिसिन से हम ट्राई करते हैं कि उनकी एंजाइटी, ये एकदम जो पैनिक जैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करते हैं। सम मेडिसिन से हम उनकी एंजाइटी लेवल्स ही ग्रेजुअली कम करते हैं। एंड देन थ्रू थेरेपी वी टीच देम सम टेक्निक्स कि अपने आप को जब ये विचार आने लगते हैं तो हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ, नॉट टू टेक एक्शंस ऑन दीज एंजाइटी। और कोई भी एंजाइटी, कोई भी डर है, उसको फेस करने से ही वो चला जाता है। आप उससे अवॉइड करोगे तो आपका वो बढ़ता जाएगा। सो हाउ टू फेस दैट, एंड व्हाट हैपेंस इफ अगेन यू स्टार्ट गेटिंग पेन, हाउ टू काइंड ऑफ अवॉइड दैट ट्रैप। तो ये थेरेपी से समझ। सो दिस इज अ कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ एफर्ट which very often gives best results. Okay. Can you discuss the role of mindfulness and meditation in managing the mental health conditions and promoting overall well-being? Yeah. So mindfulness and meditation, इसके ऊपर काफी अभी आजकल रिसर्च चल रहा है, एंड a good number of studies are showing good results uh, of mindfulness as well as meditation. There are some studies which showed that just 4 to 5 weeks regular 15-20 minutes of meditation reduced the anxiety and stress uh, for months together. And it is quite well known nowadays that uh, uh, the stress hormone called as cortisol, उसका जो इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट, वो रिड्यूस करने में मेडिटेशन का काफी अच्छा इफेक्ट है। मतलब those people who meditate regularly, the levels of stress hormone cortisol in their uh, body is much less. So क्योंकि क्या है कि cortisol is a hormone which is a stress hormone। मतलब जब आदमी स्ट्रेस में होता है तो वो रिलीज होता है to get things done basically, and but too much of it or too much exposure of cortisol is starts harming your body itself. So meditation has proven to reduce the levels of cortisol. Mindfulness also helps many times in anxiety disorders. Very very commonly see कि anxiety disorders में mindfulness help करता है। Mindfulness basically एक आपको एक ऐसी स्टेट लाता है टू ऑब्जर्व योर सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव, एक डिस्टेंस लेके अपने आप को देखना, दैट इज माइंडफुलनेस। यूजुअली क्या होता है कि आपको जब वेरी सीवियर इमोशन, देन यू ऑलमोस्ट बिकम दैट। some people they are in rage when they are angry, they become many times people come to us and say कि जब ये गुस्सा होता है ये कुछ अलग ही बंदा बनता है। He doesn't understand anything, he doesn't understand what he is saying, what he is thinking, he is not even listening to us when he is angry. So when he gets angry, he is anger in a way. Mindfulness is creating that gap between who you are and what are your emotions or what are your thoughts. तो वो गैप अगर बन जाती है, देन यू सी क्या, एम आई गेटिंग टू मच, एम आई ओवर रिएक्टिंग। सो वो एक स्टेट जब आती है कि जिसमें आपने ये गैप लेना शुरू हो गया, तो वो इमोशन जो आपके ऊपर भारी होता है वो अक्सर उसमें रिडक्शन आ जाता है, बिकॉज द नेचुरली यू स्टार्ट बीइंग मोर अवेयर ऑफ what is going on in your mind, what are the thoughts which are going on in your mind, what are the emotions which are going on, and you become aware of that, and
नेचुरली फिर वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आता है. सो मेडिटेशन डेली करना जनरल मेंटल हेल्थ के लिए भी, जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है. देर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग्स. द साइंटिफिक रिसर्च इज वेरी वेरी क्लियर कि इफ यू डू मेडिटेशन for mental well-being, for not for non-patient population also, general population also, it is very helpful. प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि कभी कभी लोगों को ऐसे लगने लगता है कि नहीं, मेडिटेशन करके मैं डिप्रेशन में से बाहर आ गया, मेडिटेशन में कर से ही मैं एंजाइटी डिसऑर्डर या दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से बाहर आ गया. एंड देयर मेनी टाइम्स द प्रॉब्लम्स हैपन बिकॉज इट्स नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन. मतलब आपको एक्सरसाइज करने से आपकी शुगर थोड़ी कम हो सकती है, बट अगर आपका डायबिटीज है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी. दवाई के बगैर शुगर पूरी तरह से, सिर्फ एक्सरसाइज करने से शुगर नॉर्मलाइज नहीं होगी. तो सिमिलरली, इफ यू हैव अ मेंटल डिसऑर्डर, देन यू नीड टू टेक हेल्प फॉर दैट. एंड सिर्फ आप वो मेडिटेशन करके ही उसको ट्रीट करोगे, ये करने के पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स यू रिक्वायर एन एक्सटर्नल इंटरवेंशन एंड नॉट अ जेनेरिक काइंड ऑफ एक मेथड. आपको पर्सनलाइज, आपको एक ये टेलर मेड सॉल्यूशन आपके लिए डिजाइन करना पड़ता है, जिसमें कुछ मेडिसिन हो सकते हैं, जिसमें कुछ थेरेपी हो सकती है. सो दीज आर द थिंग्स. सो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प, एंड one should do that as often as possible. Okay. After COVID-19 pandemic, what are the potential long-term psychological effects of the COVID-19, and how can the individuals and the society as a whole cope with these challenges? See, now we earlier, if you had asked me this question a couple of years back, I would have told you many things. But I am quite astonished uh, at the adaptability of human mind. That people have gone back to the pre-COVID times already. Most of them, very few people are still stuck with the morbid fear कि मेरे को कोविड हो जाएगा और मैं, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा. We used to get those types of health anxieties related to COVID a lot a couple of years back. एक डेढ़ साल पहले तक ये काफी आ रहा था. But आजकल somehow human beings have moved on. Okay, world has moved on, and uh, the consequences, negative consequences, could be that some people have gotten into the isolation, and earlier they were more social, and post covid they have isolated themselves. और उसके ऊपर भी work from home has become quite common now. So uh, many companies have again started this hybrid model, but in at least in IT sector, I think the hybrid model or work from home is still quite common. So it has its own problems, because then when you are doing work from home, then you are almost all the time at work. Because when you go to the office, those 8 hours, 9 hours you are working, you might be stressed. But then when you leave the office, then you have compartmentalized. That was office. This is now my personal life, my work. But when you start doing work from home, then these boundaries kind of get blurred, because you are all the time on at home and there is no compartmentalization. But this is work, this is home. Both of them get mixed up. And then many times people have observed that when they do work from home, the work stress is more, because when you go to office, probably you have so many colleagues, you can talk to them and this and that. Now, even if you have to talk to them, you have to call, or you have to go through the whatever Zoom call and this and that. But the personal touch, the presence of the other human being is not. So these are some of the problems, but a major section of society has moved on from the COVID.
डू यू थिंक कि सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे इन्फ्लुएंस है? क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम रील्स आर वेरी कॉमन, तो डू यू थिंक कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से या ज़्यादा सोशल मीडिया चलाने से हमारे ब्रेन पे कोई अफेक्ट पड़ता है? ऑफ कोर्स काफी अफेक्ट पड़ता है. नाउ डेज आई एम गेटिंग फार मोर पेशेंट, far more parents bring their adolescent children to me for treatment of this uh, social media addiction and mobile addiction, और वो continuous mobile पे ही होते हैं. If the parents take away the mobile, they get angry, violent also sometimes, and I can't live without that type of thing is there. So addiction, and there is a very nice book, but by Near Ea. It's called Hook. So in that, he has given the whole process of how these social media apps and these social media companies develop these types of apps, platforms, so that you will be hooked to them. You will be addicted to them. The more you use Facebook, the better it is for the company. The less you use Facebook, worse it is for the company. So same with all the other. ये इंस्टाग्राम का भी वैसा ही है, ट्विटर का भी वैसा ही है, सभी स्नैपचैट का भी है. द मोर यू यूज, द बेटर, द मोर मनी द कंपनी विल मेक. सो द कंपनीज आर यूजिंग ऑल द techniques to manipulate your brain and to make you addicted to these social media platforms. और उससे क्या हो रहा है कि one is the addiction itself. Second is that you don't get enough time for the interaction with your family member. वो कम होते जा रहा है. Then less of socialization. Nowadays we get very often. I just few days back I had seen a very nice cartoon that in 1996 or 1997, the mother used to get angry and used to pull the child inside the home. That why are you playing so much outside? Now you sit at home and study. And in 2023, it is opposite. Now the mother wants to throw away the child and say कि भाई ये मोबाइल और लैपटॉप पे ही बैठे मत रहो, थोड़ा सा जाके खेल, गेम्स भी खेल. And these are the things which are happening at a major population level. And these are really serious things. And there is an understanding of these things. And some of the like European Union and all, they are working on bringing some types of restrictions on, or it is always advised, at least for the children and adolescents, that parents should restrict the use of social media. And then there are these worse things which have happened, like this these programs which had come where uh, they used to kind of tell the child to commit suicide and all, they're isolated and all. So, so some of these things are quite serious, and the mobile addictions and social media addiction is also quite serious, because then you start to completely think that the virtual world itself is the real world, and actually real world you are not that much uh, concerned with, and you don't develop adequate skills to deal with the uh, normal world, real world. Okay, can you explain the concept of neuroplasticity और उसके क्या क्या implications होते हैं for mental health and therapy? सो न्यूरोप्लास्टिसिटी की कंसेप्ट जो है, ये uh, अभी क्वाइट कॉमनली, मतलब उसके बारे में कोई डाउट नहीं. पहले क्या होता था कि लोगों को लगता था कि ब्रेन जो है वो एक एक
एक टाइम तक ग्रो होता है और उसके बाद में उसकी कोई ग्रोथ नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, एंड देर इज नो चेंज। अर्लियर दैट इज बिकॉज कॉमन सेंस है कि कॉमन सेंस लगा के लोग बात करते थे कि देखो ये स्कल के अंदर तो ब्रेन है, वो ब्रेन तो ग्रो नहीं कर सकता है, तो स्कल जितना जितना बढ़ गया है उससे ऊपर तो वो ग्रो नहीं कर सकता। सो देयर यूज टू ऑल्सो बी थिंकिंग कि अगर ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया तो वो भी परमानेंट है। बट पिछले 2-3 दशकों से ये फाइंड आउट हुआ है कि देर द ब्रेन कैन चेंज इटसेल्फ, there is some adaptation which keeps on happening, and the brain functioning can change. That means that the neurons which are connected from one to other, they can change, their numbers also can change, the neural chemistry can change, and as well as the connections between these two, और उसके बीच में जो सिग्नल्स जा रहे हैं जिससे वो कनेक्टेड है वो भी चीजें चेंज होती है, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन उसका भी साइज कम ज्यादा हो सकता है। सो व्हाट न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स इज दैट ब्रेन ऑल्सो can change itself, it can adapt to new situations. If you if you take some positive steps, then your brain will also uh, respond to that thing, to something. And this is very, very important in mental health because uh, this is what we want. अगर ब्रेन अगर बन भी है, एक बन गया, अभी उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर आप कैसे मेडिसिन हेल्प करेंगे या कैसे थेरेपी हेल्प करेंगे? देन सो दिस इज वेरी क्लियर कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द एडेप्टेशन जो ब्रेन का होता है, चेंजेस इट कैन मेक इन इटसेल्फ, that is what is called as neuroplasticity, and that is a fact, scientific fact. It is not a theory; it is a scientific fact. So, suppose there are some illnesses where amygdala is functioning more, like I told earlier, कि एंग्जाइटी होता है तो एंग्जाइटी amygdala का फंक्शनिंग ज्यादा होता है, कभी कभी उसकी साइज भी बढ़ जाती है। So it is possible कि with the help of medications as well as with the help of therapy, you will make adequate changes in your brain so that you will live a normal life, happy life, and you will be able to get over the pathological changes in you. And that is the significance of neuroplasticity. ओके। जो पास्ट ट्रॉमा होता है, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से अगर आपके दिमाग पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो डू यू थिंक उसका प्रेजेंट पे अगर मान लेते हैं कि उसकी थेरेपी हो भी गई, मेडिकेशन या थेरेपी, कि उसके बाद भी उसके दिमाग पे थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा या थोड़े से भी, मतलब उसके प्रेजेंट पे उस चीज का फर्क पड़ता है? See, ट्राउमा में हमको बेसिकली ये चीज, so, वो प्रेजेंट में फर्क पड़ता है इसीलिए वो ट्राउमा है। ओके, तो अगर कोई बुरी बात हो गई है एंड वी हैव गॉटन ओवर इट, वी हैव रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर उसको तो ट्रामा नहीं बोलते। ट्रामा यही है, ट्रामा का मतलब ही यही है कि उसको प्रेजेंट पे भी मेरे अफेक्ट कर रहा है, मतलब ट्रामा इन द सेंस जो हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि समटाइम्स द इफेक्ट इज सो स्ट्रांग दैट पीपल आर एक्चुअली री एक्सपीरियंसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट अगेन। मतलब कि अभी इन रियल लाइफ सिचुएशन मैंने काफी साल पहले एक औरत को ट्रीट किया था। सो क्या हुआ था कि शी वॉज, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड उसको कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बट जॉइंट फैमिली थी और शादी होने के इमीडिएटली बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो घर वालों ने सोचा कि अरे इसको अभी बताएंगे तो ये तो बोलेगी कि आप लोगों ने मुझे ठगा, आपने यू डिडंट टेल मी दिस बिफोर मैरिज, सो दे केप्ट इट हाइड, दे दे डिडंट टेल हर ऑल द थिंग अबाउट हिज इलनेस, और वो इलनेस बढ़ता गया और सडनली वन डे द हस्बैंड डाइड एंड शी सॉ द हस्बैंड डेथ। जो एम्बुलेंस में से लाया था वो एम्बुलेंस का आवाज और उसने देखा एंड शी वाज शेल शॉक। तो उसको वो एक ट्रॉमा, जिसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो हो गया।
तो उसके बाद वो 3 साल तक वो सफर कर रही थी, 3 साल के बाद वो हमारे पास आई थी। तो 3 साल के बाद भी शी यूज्ड टू से कि मैं अभी भी जब भी कोई भी एम्बुलेंस आजू बाजू से जाती है और एम्बुलेंस का आवाज आता है, आई गो थ्रू द सेम एक्सपीरियंस अगेन जो उस टाइम पे हुआ था। एंड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आई एम गोइंग थ्रू द सेम मल्टीपल टाइम्स। तो ये है ही कि हमारी पूरी ट्रीटमेंट या थेरेपी उसी के ऊपर काम कर रही है कि आपको ये जो डे टू डे बेसिस पे उसको इफेक्ट हो रहा है, जो पास्ट ट्रॉमा आपको आज भी परेशान कर रहा है, उसमें से हमको आपको उस लेवल पे लेके जाना है कि दिस हैज हैपेंड एंड दिस was really unfortunate and this was really troublesome, this was really bad, बट अभी ये चीज हो चुका है एंड आई हैव टू काइंड ऑफ लर्न टू लिव with it and go get ahead in my life. I should focus on more on my present tense and future. So that is what we are working on to kind of resolve the conflict of the past trauma. So past trauma, see, a lot of people go through trauma, but not everyone has PTSD. तो पीटीएसडी का ये कंसेप्ट जो बहुत कॉमनली ये आया क्योंकि इन द वॉर वेटरन, ये वियतनाम वॉर वगैरह के टाइम पे क्या है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सोल्जर्स जो अमेरिकन सोल्जर्स गए थे, दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन द बैटल फील्ड। कोई किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का ऑलमोस्ट डाइड ऑन द बैटल फील्ड, एंड मेनी ऑफ द पीपल स्टार्टेड हैविंग दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कि उनको वो बैटल फील्ड निकल खत्म होके 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, पर फिर भी वो उससे परेशान है ऑन डेली बेसिस। तो उसकी वो कंसेप्ट है, बट हर कोई, बहुत सारे लोग गए ट्रॉमा से, सेम ट्रॉमा में से, एक बैटल फील्ड पे 10 लोग थे, एक को ही हुआ, दो को ही हुआ, क्योंकि बाकी के लोगों का वो रेजोल्यूशन हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और नॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रॉमा रेजोल्यूशन हो गया था। किसी का नहीं हुआ ट्रॉमा रेजोल्यूशन, तो वो सफर कर रहा है। तो आवर medications or our therapies working towards that to resolve the trauma. तो जितने भी हमारे लिसनर्स पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे? I would say कि first of all, don't uh, take these things, be aware of these, and अगर कोई जा रहा है इसमें से, कभी कभी क्या है कि कोई थोड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से जा रहा है, तो others they kind of make fun of them, या फिर दे काइंड ऑफ से बैड, spread bad things about them. Sometimes people kind of trouble them also. So I would say कि you take it as you be compassionate towards these people and you be compassionate towards yourself. अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि your state of mind has changed a lot because of some incidents or about past some time, यू आर डिस्टर्ब अलॉट, आपको बहुत ज्यादा आपके डे टू डे लिविंग में, आपके फैमिली, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके ऑक्यूपेशनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, अगर इन चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आ रही जो कि पहले नहीं, या फिर जो भी इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि एंगर हो गया, जैसे सैडनेस हो गया, जैसे फियर हो गया, उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और आप अपने आप को इन सीवियर सिम्टम्स में से, इन सीवियर इंटेंस इमोशंस में से बाहर नहीं ला पा रहे, तब समझ लो तो आपको एक हेल्प सीख करना चाहिए। समझ लो अगर आपको एक आध दिन उदास लग रहा है, जस्ट बोर लग रहा है, या फिर सैड लग रहा है, यू गो आउट विथ फ्रेंड, यू गो टू वॉच अ मूवी, यू गो टू अ रेस्टोरेंट, and you start feeling better. But sometimes even these things don't give any pleasure. You don't feel good about anything. So feel there could be some problem. So first of all, be aware that mental health issues can happen to anyone. Nobody is kind of immune to mental health issues. So if you or if your near and dear ones, they are going through it, be compassionate towards them. Don't dismiss their
symptoms. And if you are going, then go to a mental health professional, get yourself assessed, and if whatever therapy or treatment is required, take. So that is what is very important. And see, many times what happens is that, as I told earlier, कि depression का एक most severe consequence होता है suicide. And this suicidality can be avoided. And many times क्या होता है कि family members, they come to us and say कि, they were the person who died by suicide. They had told us some of the things that they feel like dying. But we didn't take it too seriously. We thought कि ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे थोड़ी करेगा. And that person actually did. So be aware of these things and be compassionate towards others as well as towards yourself if you are going through some mental health disturbances, and take help for it.